حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشکل ٹائم پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، کیونکہ اسی ٹائم مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور رومن اور پرشین امپائر سے لڑ رہے تھے۔ ان تینوں امپائر میں فرق یہ تھا کہ رومن امپائر پچھلے 1000 سالوں سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اور پرشین امپائر بھی پچھلے 800 سالوں سے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی۔ اور ان دونوں سے ایک ہی ٹائم پر لڑ کون رہا تھا؟ مدینہ کی ریاست، جو اس سب سے صرف کچھ ہی سالوں پہلے بنی تھی۔ لیکن ان سب چیزوں سے ڈرنے کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنا دیے، جس کے بعد پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لوگ انہیں رسول اللہ کے ٹائٹل سے پکارتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگ سوچنے لگے کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کون سا ٹائٹل پکارا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنے لیے بادشاہ کسریٰ جیسا ٹائٹل چھوڑ کر خلیفہ کا ٹائٹل پسند کیا، اور اب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا ٹائٹل پسند کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کی ایک فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈرشپ میں رومن امپائر سے لڑ رہی، اور دوسری چھوٹی فوج پرشین امپائر میں لڑ رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رومن امپائر کی فوج سے زیادہ پرشین امپائر کی فوج کی فکر تھی، کیونکہ وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی جنرل موجود نہیں تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، انہوں نے اس ٹائم کو یوز کر کے پرشین امپائر مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی فوج جمع کرنا شروع کر۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے رہے، لیکن پہلی بار انہوں نے دیکھا پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ مسلمان لڑ کر تھک چکے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا خالد بن ولید پرشین امپائر میں نہیں بلکہ رومن امپائر میں، اور ان کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اب یہ جو نئے مسلمان ہیں، ان کا یقین اللہ کے بجائے خالد بن ولید کے ساتھ زیادہ ہے، جو مسلمانوں کی اس امپائر کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 3 دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بہت غصے کے ساتھ بیان کیا، تو ان میں سے ایک مسلمان ابو عبید، جو صحابی بھی نہیں تھے، کھڑے ہوئے اور کہا میں جہاد کے لیے تیار ہوں، جس کے بعد آہستہ آہستہ اور بھی لوگ آگے آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 کی فوج بنائی اور اس کا لیڈر ابو عبید کو بنا کر پرشین امپائر کی طرف روانہ کیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ اگر یہ فوج پرشین امپائر سے ہار جاتی تو اس کے بعد خالد بن ولید کے بغیر مسلمان کبھی جنگ نہیں لڑتے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ فوج پرشین امپائر میں بہت بری طرح ہار گئی۔ لیکن رکو، یہ فوج ابھی راستے میں ہی ہے، ابھی تک پہنچی نہیں۔ جب یہ فوج پرشین امپائر کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی تھی، تو ادھر رومن امپائر میں مسلمانوں نے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں اس زمانے کے شام سیریا کی سب سے زبردست سٹی دمشقس کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے، اور اس فوج کو کافی عرصہ تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں، اور ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہیں۔ تو خالد بن ولید کے لیڈرشپ میں
ये फौज कई दिन तक कोशिश करती रही कि किसी तरह इस किला के अंदर घुस सके, लेकिन दमस्कस कोई आम सिटी नहीं थी। उसे इस जमाने में पैराडाइज ऑफ सीरिया कहा जाता था, मतलब सीरिया की जन्नत। और अब तक फौज अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट इसी सिटी से किया करता था, मतलब दमिश्क उस जमाने की सबसे पावरफुल सिटी थी। और उस जमाने में ये अरबों के लिए ऐसी सिटी थी जिस तरह आज लोगों के लिए न्यूयॉर्क हो। तो मुसलमानों ने उस वक्त की सबसे पावरफुल सिटी दमिश्क को हर तरफ से घेर लिया और खालिद बिन वलीद ने इस सिटी की मेन गेट पर अपने सबसे अच्छे जनरल को खड़ा किया, जिनमें से एक जनरल का नाम अबू उबैदा बिन जर्राह था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी दमिश्क फतह नहीं हो सका, लेकिन फिर अचानक एक दिन दमिश्क से एक आदमी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और उसने बताया कि कुछ ही दिन पहले दमिश्क के लीडर के घर बेटा पैदा हुआ है, जो खुशी की वजह से उन्होंने बहुत बड़ी दावत रखी, जिसमें रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया है। और उस दावत में ये सब इतनी शराब पिएंगे कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रहे। तो खालिद बिन वलीद ने उस रात मुसलमानों के ग्रुप को इस गेट के सामने खड़ा कर दिया और फिर सिर्फ कुछ मुसलमानों के साथ बिल्कुल खामोशी से दमिश्क के दीवारों पर चढ़कर अंदर दाखिल हुए और मुसलमानों के लिए अंदर से गेट खोल दी। और इस तरह मुसलमानों की फौज का एक समंदर किला के अंदर दाखिल हो गया और बहुत तेजी से मुसलमान पूरब साइड से किला को फतह करने लगे। लेकिन इस किला का जनरल इस सिटी के दूसरे साइड पर बैठा हुआ था। तो जब उसे पता चला कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुसलमान किला में दाखिल हो चुके हैं और कुछ ही देर में मुसलमान पूरे सिटी को फतह कर लेंगे। उसने जल्दी में एक खत मुसलमानों के दूसरे जनरल अबू उबैदा के पास भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के हवाले कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर मुसलमान कोई माले गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा बिन जर्राह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद की फौज दमिश्क को फतह करने वाली है। उन्होंने इस रोमन जनरल के खत को कबूल कर लिया। अब थोड़ी देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा के फैसला का पता चला, तो अगर वो चाहते तो अबू उबैदा के इस फैसला को नहीं मानते, दमिश्क को तलवार की जोर से भी फतह कर सकते और यहाँ से सारा माले गनीमत उठा सकते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के फैसला को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और इस तरह दमिश्कस उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंट्रोल में आई। लेकिन ये सब कुछ तो यहाँ रोमन एम्पायर में हो रहा है, लेकिन ये सब से बहुत दूर पर्शियन एम्पायर की तरफ जो फौज रवाना की गई थी वो अब पहुंचने वाली थी। और पहुंचने के साथ ही अबू उबैद ने देखा पर्शियन एम्पायर सामने से बहुत बड़ी फौज तैयार कर चुकी है। जब अबू उबैद मुसलमानों की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर के पास पहुंचे, अबू उबैदा ये दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। उबैद और उनकी फौज ने देखा कि पर्शियन बादशाह ने खालिद बिन वलीद से लड़ने के लिए मुसलमानों के खिलाफ इन बहुत बड़ी फौज तैयार कर रखी है, जो बहुत तेजी से मुसलमानों के तरफ बढ़ रही है। मुसलमान और पर्शियन फौज इस ब्रिज के आमने सामने हुई। तो पर्शियन जनरल ने मुसलमानों से कहा, आप ब्रिज क्रॉस करके ब्रिज के इस तरफ आए या हमें ब्रिज के उस तरफ आने दें। यहाँ अबू उबैद से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने अपने मुसलमान जनरल की बात नहीं मानी और फिर मुसलमानों की फौज को ब्रिज क्रॉस करने का हुक्म दिया। अबू उबैद जो सहाबी भी नहीं थे और उनकी उम्र भी बहुत कम थी, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें मुसलमानों की फौज का जनरल बनाया तो सहाबा ने कहा, आप उसे नहीं
बल्कि किसी सहाबी को जनरल बनाए। लेकिन वो उबैद वो अकेले इंसान थे जो सबसे पहले जिहाद के लिए खड़े हुए थे। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें एक ऐसी फौज का कमांडर बनाया था जिसमें बहुत सारे सहाबाए कराम भी थे। आखिर मुसलमानों की फौज जो 9000 थी, जिसमें बहुत सारे सहाबाए कराम भी थे, उन्होंने ब्रिज क्रॉस किया और जंग शुरू हुई। रोमन अम्पायर में दमिश्क, दमस्कस और पर्शियन अम्पायर की हीरा सिटी फतह करने के बाद अब दुनिया में हर कोई मुसलमानों को सीरियस थ्रेट समझने लगा था। तो जब उन्होंने अपने घोड़ सवारों को पर्शियन अम्पायर पर हमले का हुक्म दिया, तो वो सामने पहली बार पर्शियन अम्पायर की फौज में हाथियों को देखकर बहुत डर गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे भागने लगे, जिसे देखकर पर्शियन अम्पायर मुसलमानों पर हमला करती है और उनके हाथी बहुत सारे मुसलमानों को शहीद करने लगे। एक हाथी ने तो अबू उबैद को उनके घोड़े से गिरा दिया और फिर उनके सीने पर रखकर उनको खत्म कर दिया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी जंग में मुसलमानों के जनरल को शहीद किया गया। तो जब मुसलमानों ने अपने जनरल को गिरता हुआ देखा तो उनका हौसला टूट गया और मुसलमान जंग के मैदान से पीछे हटने लगे। जब मुसलमान भागकर ब्रिज तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया है। अब या तो इस ब्रिज को मुसलमानों की फौज में से किसी ने तोड़ा था और या इसे अबू उबैद के हुक्म से इसे तोड़ा गया था ताकि मुसलमानों के लिए जंग छोड़ना मुश्किल हो जाए। अब जब और कोई रास्ता नहीं था तो बहुत सारे मुसलमान दरिया में कूदने लगे। ये सब देखकर मुसलमानों के दूसरे जनरल मुसन्ना ने फौज को हुक्म दिया और पर्शियन पर पूरी ताकत के साथ एक आखिरी बार हमला कर दिया और पीछे खड़े मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि जल्दी से ब्रिज को किक करो। मुसन्ना की बहादुरी की वजह से 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस करके इस साइड आ गए, लेकिन 9000 में से सिर्फ 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस कर सके। मतलब 6000 मुसलमान इस जंग में शहीद हो गए। ये पहली बार हुआ था कि मुसलमान कोई भी जंग इतनी बुरी तरह हार जाए और ये जंग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की पहली जंग थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। लेकिन एक बार फिर मुसलमानों ने देखा कि एक तरफ खालिद बिन वलीद के लीडरशिप में उन्होंने दमिश्क जैसे अजीम सिटी को फतह कर लिया और दूसरी तरफ मुसलमान पर्शियन अम्पायर में एक आम सी जंग हार गए, जिसके बाद ये बात पूरी अम्पायर में फैलने लगी। जब खालिद बिन वलीद पर्शियन अम्पायर में थे तो वहाँ मुसलमान हर जंग जीत रहे थे, रोमन अम्पायर में मुसलमान हार रहे थे। फिर जब खालिद बिन वलीद पर्शियन अम्पायर से रोमन अम्पायर की तरफ गए, रोमन अम्पायर में मुसलमान जंग जीतने लगे और पर्शियन अम्पायर में हारने लगे। उन सारे हालातों से जवान मुसलमानों की ये सोच बनने लगा कि जंग में फतह सिर्फ सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ही मिल सकती है, इनके बगैर चाहे जो भी हो जंग नहीं जीत सकते। तो जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज की जनरल हुए थे तो उनकी फौज फुल जोश के साथ जंग लड़ रही थी, लेकिन जब खालिद बिन वलीद नहीं होते थे तो मुसलमान उस जोश के साथ जंग नहीं लड़ते। इन सारी बातों का मदीना में बैठे मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। तो इन सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सख्त फैसला लिया कि अब टाइम आ गया है मुसलमानों की इस फौज के अजीम जनरल खालिद बिन वलीद को उनके ओहदे से हटा दिया जाए और उनकी जगह नया जनरल को खड़ा किया जाए। रोमन एम्पायर 800 साल तक इस जहां की सबसे ताकतवर सल्तनत रही और इस 800 साल की सल्तनत के तख्ते पलट गए जब इनका मुकाबला मोहम्मद अरबी के गुलाम हजरत खालिद बिन वलीद से हुआ।